Special batch for IBPS RRB Scale 2, Scale 3 SO has started at Knowledge East for 2025. The live and recorded batches are on. You can join from the links in description. So welcome to the session for RBI Circular GIST for the month of December 2024. We have started this circular, this class because the exams are ahead. So we need to cover everything. और लास्ट 4-5 दिन में कोई इतना सर्कुलर नहीं आएगा क्योंकि ईयर एंड छुट्टी भी शुरू हो जाएगा. So let's start without further delay. Let's start for the month of December 2024 RBI circulars. So most importantly, in the month of December, we got our 26th governor for Reserve Bank of India. And who is he? Who is he? Who is he? शक्तिकांत दास जी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे. शक्तिकांत दास जी हैज उनका टेनर कंप्लीट हो चुका है. सो नाउ द न्यू गवर्नर फ्रॉम December 11, 2024 इज मिस्टर संजय माल्होत्रा. That is the point. And what is his previous positions? Previously served as Secretary, Department of Revenue and Department of Financial Services. ठीक है. Major qualifications are computer science and engineering from IIT Kanpur, masters in public policy and Princeton University USA. इतना डिटेल्स में क्वेश्चन नहीं आता है बट बेसिक के ऊपर जाएंगे. न्यू KYC रूल फॉर इनऑपरेटिव अकाउंट्स. तो बहुत many times when you have a inoperative account for 1 or 2 years in a bank, they ask you to visit the branch. You cannot re-update the KYC through online channels, right? But now we were reading about the IOB launching a e-KYC updation facility through your mobile. So now RBI mandates to streamline activation of inoperative accounts and ensure hassle-free KYC updates. And why the update? Can you tell me why this update? RBI क्यों चाहता है कि जो KYC अपडेशन हमारे इनऑपरेटिव अकाउंट में स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए? क्यों चाहता है RBI? Because you know that RBI has launched a portal called Udgam. For what? उद्गम पोर्टल क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि वी इन इंडिया देयर इज ए ह्यूज अमाउंट लेफ्ट इन इनऑपरेटिव अकाउंट्स, डॉर्मेंट अकाउंट्स, राइट? So we don't want unclaimed accounts to climb, unclaimed money to climb, because that money should be utilized in the economic activities. क्योंकि ये पैसा पूरा आइडल रहता है. RBI भी उतना उसको यूज नहीं कर पाता. RBI utilizes this as depositor awareness, but how what 0.01% of that amount is being utilized for that, even not 0.01, even below that, right? So I will be taking this class in both English and Hindi. First I will telling it in English, then I will translate into Hindi, so no regrets, right? So annual review of inoperative accounts with no transactions for a year. So banks are advised to do an annual review of all the inoperative accounts where there is no transaction for more than 1 year. Segregation of DBT EBT accounts. What is DBT EBT account? Can somebody tell me what is DBT? Direct benefit transfer accounts, electronic benefit transfer accounts has to be uninterrupted. The credit should be there uninterruptedly even if it is inoperative. Simplify KYC updates through digital and branch channels. Special focus on activating accounts for underprivileged DBT beneficiaries. Right, there are poor beneficiaries of direct benefit transfer like LPG, etc. We are getting, right? No, it is a December circular. We are discussing December circular. November is already over, so it is a December circular. Organize the campaigns. Organize campaigns for activation of inoperative and frozen accounts, and customer service committee to monitor progress and report quarterly via Daksha portal. Okay. Please explain DBT account. By the account where DBT, direct benefit transfer from the government, is being credited, subsidy, when you buy LPG every month, when you recharge your LPG 20 rupees, 10 rupees, DBT is transferred to your account or not? That is DBT account. ठीक है? Okay. Yes, Satyam asked the question at the end, right? Got it? Yes. तो समझ आया. हिंदी वालों को समझा देता हूं एक बार फिर से कि जो अकाउंट 1 साल से ज्यादा इनऑपरेटिव है, कोई आप कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन नहीं है. ट्रांजैक्शन 2 तरह का हो सकता है. कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन मतलब कस्टमर ने खुद किया है,
या फिर बैंक इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन जैसे डीबीटी, आपका अदर अदर मतलब ट्रांजैक्शन इंड्यूस्ड फ्रॉम अदर एंड्स, नॉट कस्टमर एंड, राइट, नॉन कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शंस जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपके सब्सिडी अमाउंट, ये सब क्रेडिट होता है, तो उसको हम काउंट नहीं करते ऑपरेशन में। कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन जिस अकाउंट में 1 साल से ज्यादा है उसको आप रेगुलरली 1 साल में एक बार रिव्यू करेंगे। आपका कस्टमर सर्विस कमिटी एक रहेगा जो ये प्रोग्रेस हर क्वार्टर में मॉनिटर करके दक्ष पोर्टल में अपडेट करेगा। ठीक है, दक्ष पोर्टल में आरबीआई को रिपोर्ट देता है बैंक, इट्स ए रिपोर्टिंग पोर्टल। दक्ष का फुल फॉर्म मुझे बताइए, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, दक्ष पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है मुझे कमेंट करके बताइए। इस दक्ष पोर्टल के बारे में बहुत बार क्वेश्चन भी आया है, मुझे बताइए कमेंट करके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दक्ष। प्रणब सर, इनऑपरेटिव अकाउंट 2 ईयर वाले होते हैं, एक वाले इनएक्टिव होते हैं। जो इनअप नहीं नहीं, वो समझ गया, इनऑपरेटिव अकाउंट यहाँ पे लिखा है, देखिए, एनुअल रिव्यू ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट्स विथ नो ट्रांजैक्शंस फॉर ओवर ए ईयर। जिस इनऑपरेटिव अकाउंट में 1 साल से कोई 1 साल से ज्यादा टाइम तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है उसको हम एनुअली रिव्यू करेंगे, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, गॉट इट। Yes, digital infrastructure for knowledge sharing. Right, digital infrastructure for knowledge sharing. Daksha portal. Very good. Got it? और ये लास्ट मंथ का सर्कुलर का एक पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूं कि जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस है वो हर एक यूसीआईसी लेवल पे होना चाहिए। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस विल बी कंडक्टेड एट द यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड लेवल। इफ एन एग्जिस्टिंग कस्टमर इज ऑलरेडी केवाईसी compliant, there will be no need for a new CDD when they open another account or when they avail any other product or service from the same entity। ठीक है, ठीक है, हाँ, केवाईसी देकर रेगुलर किया जाएगा। और केवाईसी के लिए कस्टमर को आप ब्रांच नहीं बुलाएंगे, आप ऑनलाइन चैनल के थ्रू सिंप्लीफाई प्रोसेस करेंगे जिससे कस्टमर आसानी से अपना इनऑपरेटिव अकाउंट को ओपन कर सकता है। ठीक है, ठीक है। और नॉर्मली हम अकाउंट जब तक 1 साल तक अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसको इनएक्टिव कहते हैं, 2 साल के बाद वो इनऑपरेटिव हो जाता है। बट एनी इनऑपरेटिव अकाउंट, नो ट्रांजैक्शन फॉर मोर देन 1 ईयर हैज टू बी मॉनिटर्ड, राइट। यूपीआई लाइट लिमिट रीसेट, अमेंडमेंट फॉर फ्रेमवर्क फॉर ऑफलाइन स्मॉल वैल्यू, ये तो आपके मॉनिटरी पॉलिसी में ये अपडेट आया है। अमेंडमेंट टू फ्रेमवर्क फॉर ऑफलाइन स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स, तो 2022 में ऑफलाइन पेमेंट आया था जिसमें मिनिमम 500 था, उसको बढ़ा के 2000 कर दिया गया है। ठीक है, सॉरी, 500 को 2000 किया गया, फिर अभी उसको 5000 किया गया है। पर ट्रांजैक्शन लिमिट जो अर्लियर 500 था वो अभी बढ़ के 1000 हो गया है। ठीक है, ऑफलाइन पेमेंट्स पर जैसे यूपीआई लाइट, इन योर फोन पे देर इज ए फीचर कॉल्ड यूपीआई लाइट, आपको बार बार पिन देने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑफलाइन पेमेंट आप कर पाएंगे अप टू 1000 रुपीज पर ईच ट्रांजैक्शन एंड मैक्सिमम लिमिट विल बी ₹5000। ठीक है, IRR सेलिंग इन एफसीएनआर बी अकाउंट में इंटरेस्ट रेट का सीलिंग चेंज हुआ है। ठीक है, एफसीएनआर नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स में क्या हुआ है रेट, इट इज ओवरनाइट अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट ARR, एनी अल्टरनेट रेफरेंस रेट प्लस 400 बेसिस पॉइंट। मान लीजिए अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट अभी 7% है किसी का, जैसे मॉडिफाइड मिफर होता है, जो पहले लिबर हुआ करता था वो तो हट गया है, अभी बहुत सारे सोफार, SOFR, सोनिया, ये सब अल्टरनेट रेफरेंस रेट है जिसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट क्या रहेगा, राइट। तो ये एक बेंचमार्क है,
Got my point? What is per month per day? Per month or per day, sir? It is per month limit. ठीक है, यूपीआई लिमिट तो आपका 5,000, आप यूपीआई लाइट में आप 5,000 रिचार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है सर, 5,000 इज पर 24 आवर्स लिमिट, 24 आवर्स लिमिट, 24 आवर्स। ठीक है, 1 ईयर टू लेस देन 3 ईयर्स, 1 ईयर टू लेस देन 3 ईयर रेट रहेगा, मान लीजिए 7% है ARR, प्लस प्लस आपका 4% इफ द टेनर इज 1 to 3 years, बियॉन्ड 3 to 5 years it is ARR plus 500 basis point. Okay, this change will be effective from December 6, 2024, right? दिस वाज जस्ट ए सैम्पल सेशन, ये एक सैम्पल सेशन ही था। कंप्लीट सेशन और पूरे सिलेबस के लिए आपको रजिस्टर करना होगा नॉलेजिस्ट के डेडिकेटेड कोर्स से। कोर्स का लिंक एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, also in your application and in your website. So don't hesitate to join from there. Thank you.